Welcome to Radix. In this session, we will discuss previous year geometry question from 201 to 250. Okay, question number 201. Two line segment PQ and RS intersect at X in such a way that XP and XR XP okay, देखो ऐसे मान लो ये XP और ये XR है. Sorry, PQ and RS. Okay. It intersect at X such that XP is equal XR. This side is equal, and also given PSX. Join this line, and this RQX. This angle theta. This is theta. अच्छा, in this अब ये दो triangle consider कर लो. ये angle opposite होंगे तो 1 1 मान लो. This angle 2 2. Now अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और क्योंकि साइड इक्वल तो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा. इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. देखो साइड एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो ये साइड इक्वल और ये साइड इसके इक्वल. अब हमारे पास क्या बचता है? कंडीशन पे डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है. पी एस इज इक्वल आर क्यू. यस, बी ऑप्शन. देखो बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें आपको इमेजिन ज्यादा करना था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Two chords AB and CD of circle whose center is O meet at the point P. Okay, this is AB and this is DC. Now they intersect at point P. Center is O. This is center. Given that angle AOC is 50 degree and BOD this is 40 degree. Now join this CB. Now because this angle is 50, this would be 25. Angle on center, angle circumference, and this angle is 40, this would be 20. अच्छा, ये 20 ये 25, तो ये एंगल कितना होगा? एक्सट्रा एंगल 45. हमको पूछा क्या है? BPD. ये सही पूछा है. एंगल इज सी ऑप्शन. Okay, next question. A straight line parallel to BC of triangle ABC intersect ABC. Now, a straight line parallel to BC ABC inter AB and AC at P and Q. This is P, this is Q, and given that this is parallel. Now, if AP is equal QC and PB is 4 and AQ is 9, तो देखो ये मान लो आप XX, आपको पूछा क्या है? AP पूछा, X पूछा है आपसे. तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, X by 4 is equal 9 by X, so X square would be 36, X would be 6. Answer is C option. Okay, next question. Okay, in triangle ABC, AB square plus AC square is equal BC square. Okay, AB square plus AC square is equal BC square. इसका मतलब क्या है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि एंगल A 90 है. BC हाइपोटेनस हो गया. नाउ BC गिवन है √2AB. अच्छा, √2AB मतलब अगर ये साइड A है तो ये √2A है. इसका मतलब ये भी A होगा. ये एंगल क्या होंगे? सब 45 हो जाएंगे, ये 90 हो जाएगा. हैंस आंसर इज बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two chords AB and CD of circle with center O intersect each other. Okay. पहले ही क्वेश्चन है. टू कॉर्ड्स AB, दिस इज AB एंड दिस इज CD एंड दे इंटरसेक्ट एट O. नाउ गिवन दैट एंगल, एक क्वेश्चन इस तरह पहले भी आया था ना, AOD, दिस इज 20 एंड BOC दिस इज 30. नाउ ज्वाइन कर लो इसको और ये पॉइंट P है आपका. वी हैव टू कैलकुलेट BPC. अच्छा, ये 20 तो ये कितना होगा? 10 होगा. दिस 30, दिस वुड बी 15, तो ये कितना हो गया? 25. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ABCD is a quadrilateral inscribed in a circle ABCD, center O. Now COD, this angle is 120 and BAC, this angle is 30 degree. Now we have to calculate BCD. Okay, we have to calculate this. Okay, if this is 120, this would be
60, देखो ये 120 है ना, इसका हाफ ही होगा 60 डिग्री. नाउ दिस कंप्लीट एंगल इज 90, देन BCD वुड बी 90. देखो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है ना. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, दिस इज ABC एंड दिस इज DEF. गिवन दैट दे आर सिमिलर, तो एंगल इक्वल होंगे. A बराबर D होगा, B इज इक्वल E एंड C इज इक्वल F. नाउ एंगल A इज 47, एंगल E इज 63, तो दिस वुड ऑल्सो बी 47 एंड दिस वुड ऑल्सो बी 63. तो अगर ये 63 ये 47, तो ये पूरा कितना हो गया 110, तो दिस वुड बी 70. आंसर बी ऑप्शन. सिमिलरिटी यूज करना था, एंगल बराबर करने थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ACB. ओके, दिस इज triangle ABC, internal bisector of ABC and ACB meet at O. If angle BOC is 110, तो this angle, ये फॉर्मूला होता है 90 plus half angle A is equal BOC, which is 110. So half angle A is equal 20, angle A is equal 40. Answer is A option. Okay, next question. In triangle ABC, angle B is 60 and angle C is 40. If AD and AEB respectively, internal bisector of angle A, अच्छा, this is ABC. इसका perpendicular AD है and AE is angle bisector. Okay? आपको पूछा है D, आपको ये एंगल पूछा हुआ है. अच्छा, this is 90 degree, angle B is 60 and angle C is 40. If this is 40, this 90, this would be 50. Okay, and now this is 60, this is 40, this complete angle would be 80. Now this A is angle bisector, this angle would be 40, तो ये कितना बचा 10. आंसर. Okay, next question. A circle with center O touching two intersecting line AX and BY. This is X. Now AB subtend angle 65 at any point C. Let this point is C. Now AB subtend an angle 65 on this. If P is the point of, ये point P दिया हुआ है, we have to calculate APO. So we have to calculate this angle. तो देखो कितना आसान सी बात है. This 65, this would be 130 और ये 90 है, 90 है, तो ये इन दोनों, इन चारों का सम कितना होगा? It would be 360. So this would be 50 और इसका हाफ हो जाएगा 25. आंसर ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट एट ओ. ओके, नाउ ए बी सी. नाउ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ सी intersect at O, and given that this angle 102, we have to calculate BAC. तो rule is 90 plus half angle A is equal BOC, which is 102. So half angle A is equal 12, angle A would be 24. This is very important question. These type of question asked several time in examination. Okay, next question. The angle between the external bisector of two angles of triangle is 60, then the third angle of the triangle. Simple सा concept है. ये bisector हुआ, ये bisector हुआ, and given that this angle is 60 degree, we have to calculate theta. So rule is 90 minus half angle A is equal, अगर ये angle A है, it is equal to 60. इस angle के बराबर होता है. तो half angle A would be 30, angle A would be 60 degree. Answer is C option. Okay, next question. I is the incenter of triangle ABC. Okay, देखो इन सेंटर का कॉन्सेप्ट वही होता है, एंगल बाइसेक्टर. सो ए बी ये 60 दिया हुआ है, बी सी ये दिया हुआ है आपको 80, तो बी आई सी पूछा है. देखो अगर आई इन सेंटर है तो ये 30 होगा, ये 40 होगा, तो दिस वुड बी 110. ओके, सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ट्राइंगल एबीसी, ओके, हमने क्या किया, ये हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, BE परपेंडिकुलर टू AC ड्रॉ किया. उसी तरह से हमने एक CF परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ किया, एंड ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं. आपको दिया BAC इज 70 डिग्री, देन द वैल्यू BOC. अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लेट दिस एंगल इज X, दिस एंगल इज
y. ओके, सो यहां पर ये 70 है तो दिस वुड बी 20, सेम वे दिस वुड बी 20. तो इस पूरे ट्राइंगल की बात करते हैं तो x प्लस 20 प्लस वाई प्लस 20 प्लस 70 वुड बी 180. बड़े ट्राइंगल की बात करते हैं तो x प्लस वाई कितना हो गया 70 20 90 110 70 डिग्री. तो x प्लस वाई 70 हो गया तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई विच इज 110. आंसर इज डी ऑप्शन. देखो डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान है एंड डायग्राम बनना ही इंपॉर्टेंट होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. O is the center and arc AB subtend angle 130 degree at O. Okay, देखो this is A, this is B and this is C. This is arc ABC. It subtend an angle 130 degree at the center. अच्छा, अब आगे बोला AB is extended to P and we have to calculate angle PBC. Okay, तो आप एक काम करो, join this. Let this is D. Is if this is 130, this would be 65, and this is exterior angle of this cyclic quadrilateral would be 65. Answer is C option. Okay, next question. Internal bisector of angle B and angle C of triangle ABC meet at O. तो देखो ABC, their angle bisector, internal bisector meet at O. Now this angle is 80, so this value would be 90 minus plus half angle A. Okay, so it is 90 plus half of A, 40, 130. Answer is D option. Okay, next question. In triangle PQR, points ABC are taken on PQ, PR, PQR respectively such that, देखो यार PQR पर हमने PQ पे लिया है पॉइंट हमने A, PR पे लिया B एंड QR पे लिया है C, such that QC is equal AC. ओके, ये इक्वल है एंड CR इज इक्वल CB, ये इसके इक्वल है. इफ एंगल QPR 40, ओके, दिस एंगल इज 40 डिग्री, वी हैव टू कैलकुलेट ACB. ओके, देखो बहुत आसान सी बात है. दिस एंगल X, दिस वुड ऑल्सो बी X, दिस एंगल Y, दिस वुड ऑल्सो बी Y. अच्छा, अब ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 2Y, दिस वुड बी 180 माइनस 2X. ओके, हमको निकालना ये, तो ये क्या होगा 180 माइनस 180 माइनस 2x माइनस 180 माइनस 2y. नाउ इट इज 180 माइनस 180 प्लस 2x माइनस 180 प्लस 2y. सो 180 कैंसिल हो गया, दिस इज 2x प्लस 2y माइनस 180. अब हमें अगर x प्लस वाई कैलकुलेट हो गया तो क्वेश्चन आसान हो गया. नाउ 40 प्लस x प्लस वाई क्या होगा, ये होगा 180. सो x प्लस वाई कितना हो गया 140. पुट करो यहां पर 2 इंटू 140 माइनस 180, तो दिस इज 280 माइनस 180 और 100 डिग्री. आंसर डी ऑप्शन. अच्छा क्वेश्चन था, नोट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू कॉर्ड्स ए बी सी डी ऑफ सर्किल विथ सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी. तो लेट दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी एंड दिस पॉइंट इज पी. नाउ गिवन दैट ए डी पी, okay, this angle is given as 23 and APC this angle is 70, then BCD, okay, we have to calculate this. okay, देखो अगर ये 23, this would also be 23. अच्छा, इस एंगल थीटा, तो इन दोनों का सम एक्सट्रीम एंगल के बराबर होगा. थीटा प्लस 23 इज इक्वल 70, तो थीटा वुड बी 47. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज, देखो 2 3x और 4x मान लो, इनका सम कितना होगा, ये एंगल A है, ये B है, ये C है, 180 होगा. तो यहां से हो गया 9x इज इक्वल 180, x वुड बी 20, तो ये हो गया 40, दिस इज 60 एंड दिस इज, अगर ये ABC है एंड दिस वुड बी 80. ओके, अच्छा, अब आपको बोला है अ लाइन ड्रॉन CD पैरेलल टू AB, ये पैरेलल ड्रॉ किया है तो ACD पूछा हुआ है आपसे. ओके, सो ये 40, तो दिस विल ऑल्सो बी 40. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ट्राइंगल ABC BAC इज 75 ABC इज 45. तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये 75 45 तो ये हो जाएगा 60 डिग्री. हमने बोला है BC is produced to D
एंड दिस एंगल इज x। तो देखो ये 60 तो कितना हो गया 120, और आपसे पूछा x बाई 3% ऑफ 60, x 120 बाई 3%, 1/100 इंटू 60, तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, दिस इज 2, 24 इज द आंसर, डी ऑप्शन। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 221। इन ट्राइंगल ABC, AB is equal AC, BA is produced, this is B, this is A, and this is A. See, so given that this side equal this side, and now BA is produced such that this is also equal, ठीक है ना? AC is equal AD. Now we have to calculate angle BCD. BCD. Okay, now let this angle be x. This would also be x. ये 2x होगा, क्यों? ये तो होगा एक्सट्रीम एंगल। अच्छा, अब let this angle be theta. This would be theta. तो हमें निकालना है x प्लस थीटा, राइट? क्योंकि दो साइड इक्वल है, तो इधर इस ट्राइंगल में जो आउटर ट्राइंगल बना है 2x प्लस 2 थीटा वुड बी 180, x प्लस थीटा वुड बी 90 डिग्री, आंसर डी ऑप्शन। इन ट्राइंगल ABC एंगल A एंड एंगल B 65, देखो यार ABC एंगल A प्लस B, दिस इज 65, तो ये कितना बचेगा भाई? अगर वो 65 है तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, एंगल B एंड C इज 140, देन दिस वुड बी 40, और ये 65 है तो कितना होगा 25, क्या पूछा है? हो गया। ओके, नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज 90 डिग्री, ओके, दिस इज 90 डिग्री C एंड दिस इज B, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 55 डिग्री, ओके, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BAD? नाउ बहुत घटिया सा क्वेश्चन है यार, अगर ये 55 दिस 90 दिस वुड बी, अच्छा, वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर AD, सो एंगल BAD दिस वुड बी 90, दिस वुड बी 55, ठीक है ना? इफ O बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR एंड OQR, ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। PQR, ओके, नाउ QOR इज 110, इसका मतलब इसका सर्कम सेंटर आउटर में बनेगा, ठीक है? QOR OPR 20 मेजर ऑफ PRQ। एक दूसरा दिमाग लगाते हैं इसमें, इस तरह से डायग्राम डालते हैं, ठीक है? ये हो गया Q, दिस इज P, दिस इज R, लेट दिस इज O, ठीक है? नाउ गिवन दैट दिस एंगल इज 110, ठीक है भाई? अच्छा, उसके बाद OPR दिस एंगल इज 25, तो ये कितना होगा 25 रेडियस हो गई। अच्छा, दिस 25 दिस वुड बी 130। अच्छा, इसका मतलब ये डायग्राम बाहर की तरफ बनना चाहिए, ओके, तो डायग्राम फिर चेंज करते हैं। देखो डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट, डायग्राम गलत बन गया तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा इसमें फिर। दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज P, दिस इज O। नाउ QOR दिस एंगल इज 110, राइट? अच्छा, OPR दिस एंगल इज 25, तो दिस विल ऑल्सो बी 25, राइट? नाउ दिस 25, दिस कंप्लीट वुड बी 130, तो ये कितना बचेगा, क्या पूछा आपसे? देन द मेजर ऑफ PRQ, ओके, ये एंगल पूछा हुआ है। देखो यार, ये 20 तो ये 10, बहुत छोटा हो गया ना, कोई बात नहीं, 20 है ना, ये 20 बन रहा है, PRQ, कोई बात नहीं, फिगर चेंज करते हैं, फिर चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री में फिगर की मेन इंपॉर्टेंस होती है। चलो हमने फिगर ऐसे बना लिया, सेंटर अंदर कर लिया, ठीक है? PQR, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना पड़ता है। QOR,
दिस एंगल इज 110, राइट। उसके बाद OPR दिस एंगल इज 25, तो ये भी 25 हो गया, ये कितना हो जाएगा 130। अच्छा ये 130 है, 110 से कितना हो गया 120। देन द मेजर ऑफ PRQ, ये पूरा पूछा हुआ है। अच्छा देखो ये 110, तो ये कितना हो जाएगा 35, तो आंसर कितना हो गया 60। एक बात समझना, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, डिपेंड करता है डायग्राम कैसा बनाया आपने। 10 नहीं था तो डायग्राम चेंज करना पड़ गया, आंसर इज 60। देखो 10 भी पॉसिबल, लेकिन वो डायग्राम नहीं बन पा रहा था उस हिसाब से, तो डायग्राम के हिसाब से क्वेश्चन सेट करना पड़ता है। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज O, एंगल AOE। अगर डायग्राम बना तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। DAO 51, देन द मेजर ऑफ एंगल CBE, ये पूछा हुआ है आपसे। देखो यार ये 150 से कितना हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन। 51 का यूज ही नहीं हुआ, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ABC BC इज प्रोड्यूस टू D, ओके BC is produced to D, this is A, such that CD is equal AC, okay, and angle BAD, this angle is 111, and ACB, this angle is 80। ये तो गड़बड़ है क्वेश्चन। अच्छा BAD, सॉरी BAD, ये पूरा एंगल 111 है, ठीक है। then the measure of angle ABC, okay ABC, ये एंगल पूछा हुआ आपसे, ओके। अगर ये 80 तो कितना होगा 100, और ये XX तो 50-50 हो गए, 40-40 हो गए, तो ये कितना बचेगा अंदर वाला 40 - 71 होगा, ये 71, ये 80, तो ये कितना होगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट, ओके एक क्वेश्चन मैं इससे कर चुका हूं। देखो एंगल AB and C, now A plus B 145, तो ये कितना बचेगा 35। now C plus 2B is 180, तो twice of B is equal 145, angle B is equal 72.5, तो this is 72.5। now this is 1, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं कितना हो जाएगा 107.5, तो ये हो जाएगा कितना 82.5। अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, द लार्जेस्ट एंगल, कोई बात नहीं दोनों सेम हो गए, इसका मतलब CA बराबर AB, ए ऑप्शन, ठीक है। अच्छा दोबारा देख लेते हैं कंडीशन क्या क्या है। एंगल A प्लस B और एंगल C प्लस 2 एंगल B, ये हो गया 35, तो क्लियर है ना 145। हाँ ये क्वेश्चन नहीं, आंसर वो नहीं है। देखो एक चीज समझो, हाँ एक कॉन्सेप्ट होता है, ये जो कंडीशन है AC इज इक्वल BC तो दी नहीं है, बाकी ग्रेटर लेस दिया हुआ है। द लार्जेस्ट एंगल कंटेन लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू इट, जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सबसे आगे सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखो CA और AB, CA के आगे 72 और AB के आगे यस बी ऑप्शन, नहीं सॉरी गलत हो गया, उल्टा है, ये हो डी ऑप्शन, ठीक है। कंडीशन भी तो डिपेंड करती है, वो वाली कंडीशन आई नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ABC आर 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, इफ एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल 15, एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल 30, देन ABC। बहुत आसान सी बात है, ऑप्शन से करेंगे। A और B का डिफरेंस, ये 15 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, इनमें 15 आ रहा है, इसमें 15 नहीं आ रहा है, आंसर इज सी। भाई ये कंडीशन फुलफिल कर लो, इससे घटिया क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम लोगों को, है ना। भाई पहली कंडीशन 2 में ही फुलफिल होगी तो आगे करनी होती नहीं हमको। नेक्स्ट, ऑल साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC टच ए सर्किल, एक कॉन्सेप्ट होता है ध्यान रखना, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टचेस अ सर्किल देन सम ऑफ अपोजिट साइड AB प्लस DC इज इक्वल AD प्लस BC, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब आपको दिया क्या है, AB 6 BC 7.5 CD 3, वी हैव टू कैलकुलेट दिस AD,
रख दोगे वैल्यू 6 प्लस 3 इज इक्वल 7.5 प्लस BC, तो ये कितना हो गया 9, 1.5। क्लियर है भाई? अच्छा प्रूव करो उसको, चलो देख लो, बहुत मजेदार लॉजिक है, ध्यान देना कैसे हुआ ये। ओके, लेट दिस साइड इज A, कैपिटल ले रहा हूं, ठीक है, दिस साइड इज B, दिस साइड इज C एंड दिस साइड इज D, राइट। ध्यान देना, इतना हिस्सा मान लो आप स्मॉल a, इतना a/2 नहीं होगा, तो ये भी तो a होगा, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये साइड B तो ये भी B होगा, ये साइड C ये भी C होगा, और ये साइड D तो ये भी D होगा। अब देख लो आप, मैंने क्या बताया, A प्लस C इज इक्वल B प्लस D, अपोजिट साइड का सम बताया ना। A क्या है, A प्लस D, और C क्या है, B प्लस C इज इक्वल B क्या है, D प्लस C, और ये क्या है, A प्लस B। हो गया बराबर सारा। अब अगर ये हाई स्कूल में आप प्रूव करोगे तो आप सबको लिखोगे ये ऐसा क्यों हुआ, थ्योरम नंबर दिस, है ना, AC VC कटंग, ये ना LHS बराबर RHS, लेकिन आपको यहां पर डायरेक्ट करना है, समझे भाई। ओके, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC such that AD, okay, ABC, D is a point like this, and given that AD is perpendicular to BC, E is a point on AD for which AE is to ED, ये यहां पर कहीं पॉइंट है, ओके, और ये रेशियो दे रखा है आपको 5:1। नाउ इफ एंगल BAD, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, एंड गिवन दैट एंगल tan ऑफ एंगल ACB को मान लो आप अल्फा, और DBE को मान लो आप ये E, इसको मान लिया मैंने बीटा, तो आपको दिया हुआ है tan अल्फा इज इक्वल 6 टाइम tan बीटा। वी हैव टू कैलकुलेट एंगल ACB, ओके, वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा, बहुत आसान सी बात, ध्यान देना। नाउ गिवन दैट दिस इज 30, दिस वुड बी 60। अच्छा, ये 5 और 1 है, तो इसको मानो 5x एंड x, ठीक है। 60 के आगे क्या हो गया, 6x, ये पूरा एंगल 60 है ना, साइड अपोजिट टू 60 इज 6x, सो साइड अपोजिट 30 वुड बी 6x बाई √3, ठीक है। ये हो गया कितना, √3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√3x, तो दिस साइड BD इज दिस। नाउ tan अल्फा इज इक्वल 6 इंटू tan बीटा क्या होगा, x अपॉन 2√3x, अरे समझ रहे हो बात ये, तो दिस इज 2 3 ये हो गया √3, tan अल्फा इज इक्वल √3, अल्फा वुड बी 60 डिग्री, आंसर। ओके, 30 60 90 लग गया, बहुत कुछ लग गया इस क्वेश्चन में। 30 60 90 बहुत यूज होता है, ज्योमेट्री में कई क्वेश्चन में देखा होगा, मैंने यूज किया इसको। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट द पॉइंट हुज नेम इज ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज 5 टाइम्स ABC। Let this is alpha, this is beta, this is gamma. तो फर्स्ट कंडीशन, एंगल ABC, बीटा इज इक्वल 5 टाइम्स गामा, एंड BAC अल्फा इज इक्वल ACB 3 गामा। तो सबको जोड़ लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, 180। अल्फा इज 5 गामा एंड दिस इज 9, टोटल 9 गामा हो जाएगा 180, तो गामा कितना हो गया 20, तो अल्फा हो जाएगा 60 और बीटा कितना हो जाएगा 100। क्या पूछा हुआ है, 100, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस BC ऑफ ट्राइंगल ABC इन बोथ वेज आर 1। ओके, क्वेश्चन कह रहा है, अगर मैं BC बेस को मैंने दोनों साइड प्रोड्यूस किया, ये ऐसे प्रोड्यूस किया, इसको ऐसे प्रोड्यूस किया, this angle is 120, this angle is 105, okay, then the vertical A of the, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 60 हो गया, ये 75 हो गया, ये कितना हो जाएगा 145, अरे ये 135 हो जाएगा 45, सी ऑप्शन। ओके, AD, BE and CF are medians of triangle and ABC, then which of the following statement is correct। बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, sum of sides क्या होता है 4/3 सम ऑफ मीडियंस, और यही एरिया में भी यूज होता है।
ठीक है, इसका मतलब सम ऑफ साइड्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ मीडियंस। तो अब देखो ए, अब यहां पर ये साइड्स को शो कर रहा है और ये मीडियन को शो कर रहा है, ADBECF, तो ये पहला ही ऑप्शन हो गया बस। अरे समझे बात? ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एबीसी द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी एंड एसीबी मीट एट आई एंड बीएसी। ओके, डायग्राम बना लेते हैं, एबीसी और एसी। ओके, एबीसी, नाउ इनके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कर देते हैं। ये एंगल बाइसेक्ट हुए हैं, आई पे मिल रहे हैं। तो अब आपको दिया है BAC, ये दिया हुआ है आपको 50, तो इसका फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? 90 प्लस हाफ एंगल ए, तो 50/2 कितना हो जाएगा? 115, बी ऑप्शन। देखो ये फॉर्मूला 37 बार आ रहा है, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर बहुत यूज होता है। AD is median of triangle ABC and O is the center of it such that AO 10 the length of OD। AO 10 है तो 2:1 रेशियो होता है। देखो भाई ये O है, दिस इज 2:1, ये 10 दिया तो ये कितना होगा? 5। ज्योमेट्री में देखो जब 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, तो कोई एक क्वेश्चन टफ होगा जिसमें डायग्राम बनाने को दिया जाएगा। तो कभी कोई डायग्राम आगे भी जो सर्किल में, वो भी एंगल के केस में थोड़ा चेंज हो सकते हैं डायग्राम, तो उसमें टाइम लगता है। बाकी सर्किल क्वेश्चन बहुत आसान आता है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इनसाइड ए ट्रायंगल एबीसी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट एबी एंड एसी एट द पॉइंट पी एंड क्यू। तो दिस इज AB and this is AC, a line parallel to BC PQ intersect it at P and Q. Now if AB is thrice of PB, अगर ये x है तो ये 3x होगा, तो ये 2x होगा इतना हिस्सा। देन PQ एंड BC, तो देखो PQ अपॉन BC, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। दिस इज AP अपॉन AB, 2x अपॉन 3x, आंसर इज 2:3। सिमिलरिटी का रूल है ना ये। द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज O इफ, अच्छा सर्कम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। नाउ ABC, दिस इज सर्कम सेंटर O। नाउ BAC, दिस इज 85, BCA, दिस इज 75, द वैल्यू ऑफ OAC। ओके, ये पूछा है हमके। तो जो ये एंगल है उसे डबल यहां पर होगा, तो 85 75 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, तो ये कितना होगा? 40। अब अगर ये 40 है तो ये हाफ हाफ होंगे ना, बराबर में इक्वल होंगे, रेडियस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 70 70, आंसर इज C। देखो इतना कमांड लाना पड़ेगा आपको कि एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये इक्वल होंगी, रेडियस होंगी, क्योंकि सर्कम सेंटर है ना, सर्कम सेंटर। अब आप सर्कल थोड़ी बनाओगे वहां पर, लॉजिकल प्रिपेयर रहना पड़ेगा। O is the incenter of triangle ABC, इंसेंटर बनता है एंगुलर बाइसेक्टर से, ध्यान रखना। एंगल है 30, देन देखो बहुत घटिया सी बात है, जो अभी बताया था आपने 90 वाला लॉजिक, इफ दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल कितना दिया? 30, तो ये कितना होगा? 90 प्लस A/2, ये तो था रूल, 105। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, let O be the incenter of triangle ABC and D point on the side BC of triangle ABC such that OD perpendicular to BC if B। okay, डायग्राम बना लेते हैं। let this is what incenter O, incenter वर्ड यूज हुआ, ध्यान रखना। O बोला है वो अलग बात है, ज्यादातर इंसेंटर को I बोलते हैं और सर्कम सेंटर को O बोलते हैं, लेकिन यहाँ O बोला है इंसेंटर को। नाउ हमने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OD विच इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ABC, एंगल BOD, दिस एंगल इज 15, ये कितना होगा? 90, तो ये कितना होगा? 75, और बिकॉज इट इज एंगल तो ये भी 75 होगा, आंसर 150। अरे समझे, प्रॉपर्टी यूज हुई है पूरी पूरी। इन सेंटर पता होना चाहिए कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। हो गया? इन ट्रायंगल एबीसी इन सेंटर इज O एंड एंगल BOC, सेम क्वेश्चन है पहली तरह। ABC, दिस इज इन सेंटर BOC, ये कितना दिया हुआ है? माना ये A है, तो 90 प्लस A/2 इज इक्वल 110, A वुड बी 40। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ओके, द इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर। इक्विडिस्टेंट पॉइंट वर्टेक्स से है, सर्कल बनेगा, सर्कम सेंटर बन जाएगा।
ओ इज द इंसेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, बहुत बार क्वेश्चन घूम के आ गया ये वाला। दिस इज 116, तो ये पूछा आपको ए 90 प्लस ए बाई 2 126 52, ठीक है ना। जो मैंने को खास टफ क्वेश्चन दिखे ना अभी तक, एक दो क्वेश्चन टफ थे बस। हाँ हाँ वही टफ था। द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड वेयर ए बी एंड एक्सटेंडेड टू, ओके ये भी क्वेश्चन कई बार हो चुका है। ए बी सी, अब हमने एक्सटर्नल एंगल इसको बाइसेक्ट किया, ये ऐसे क्वेश्चन, ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये 100 दिया हुआ है, तो ये पी पॉइंट है, ये पूछा हुआ है, तो बीपीसी क्या था 90 माइनस हाफ एंगल ए, तो 150 40, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। द पॉइंट डी एंड ई हैव टेकन ऑन द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल एबी सच दैट, ओके बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो। ए बी और ए सी भी लेना, ए मान लो ये, दिस इज बी, दिस इज सी। नाउ डी पॉइंट इज सच दैट ए डी इज 1/3 ऑफ, मतलब ये 1 है तो वो 3 है, तो ये 1:2 का रेशियो हो गया, ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद ए ही ऐसा लिया गया है सच दैट इट इज 1 ऑफ, ओके तो बहुत आसान सी क्वेश्चन हो गया, ये पैरेलल हो गई भाई, 1:3 ये भी है, तो अब ये पैरेलल लाइन हो गई इसके। इफ लेंथ ऑफ बी सी इज 15 देन द लेंथ ऑफ डी, देखो डी अपॉन बी सी इज इक्वल ए डी अपॉन ए बी। जो पहली लाइन थी इससे पता लगता है कि दीज लाइन्स आर पैरेलल, उसका सिमिलरिटी लग जाएगी डी अपॉन बी सी, तो ए डी 1 तो ये 3, ये 15 दिया हुआ है, तो डी इज इक्वल 5, ओके। आगे बढ़े। D is any point on side AC of triangle ABC if P, Q, X, Y are the midpoint, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार ये भी। ओके ट्राइंगल ABC, देखो P मिड पॉइंट है AB का, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, एंड यहां पर मान लो कोई पॉइंट D है, X इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, D पॉइंट कहां पर है, AC पर है, ओके यहां पर है D पॉइंट, दिस इज D, ठीक है। अच्छा P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये Q है, एंड X इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये इसका मिड पॉइंट है, एंड DC का मिड पॉइंट है Y, तो वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ PX, ओके बहुत आसान बात है, 1:1 होगा। कैसे होगा, देखो इसको ज्वाइन कर दो आप, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट, तो ये इसका हाफ हुई और इसमें ये भी हाफ हुई, तो दोनों बराबर हो गए, आंसर इज 1:1। डायग्राम बड़ा था, बाकी क्वेश्चन की लॉजिक में बहुत आसानी थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेगा सबको। इन ट्राइंगल एबीसी PQ is parallel to BC, okay, ABC, PQ is parallel to BC. If AQ is 3 and AP into PB, ये 1:2 है, तो ये अगर 1 है तो ये इसका दुगना, मतलब ये 6 होगा, AC हो गया 9, सिमिलरिटी थ्योरम से। इन अ ट्राइंगल ABC, AB प्लस BC, ABC, इसको मानो आप C, दिस इज A, दिस इज B, ABC, BCA इज इक्वल 12, BCA, CAB 14, B प्लस C इज इक्वल 18, ओके जोड़ो इनको, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा 44, A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा 22। बोला है फाइंड द रेडियस सर्किल विच हैज द सेम पेरीमीटर एज द ट्राइंगल, तो 2 पाई R एज 22, R वुड बी 7/2, रेडियस आ गई, बी ऑप्शन। इन ट्राइंगल ABCD एंड पॉइंट ऑन ABS इज, ओके वी हैव ट्राइंगल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एक बार आ चुका है इस तरह का। दिस इज DE पैरेलल टू BC and D divides the ABC into two parts of equal area, then the ratio of AD and BD. Okay, हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ADE
upon area of ABC. If this is area A, this also A. बोला हुआ है कि this line divides this triangle in two equal area part. तो it is equal to AD square upon AB square. ये समझ में आई बात? अच्छा, ये एरिया कितना हो गया A, तो नीचे एरिया कितना हो गया 2A. A कैंसिल हो गया. AD अपॉन AB इज इक्वल 1/√2. इसका मतलब ये हिस्सा 1 है, तो ये हिस्सा कितना है, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा. तो रेशियो पूछा आपसे AD और BD, तो 1/√2 - 1 बी ऑप्शन. एरिया इक्वल हो जाता है तो 1:√2 होती है बड़ी साइड, तो नीचे √2 - 1 हो जाएगा. ध्यान रखना इसको. अच्छा, एक चीज और, आंसर की फॉर्म ये भी हो सकती है, √2 + 1:1 भी हो सकती है. भाई अगर मैं कॉन्जुगेट, ध्यान रखना गलती ना कर देना कि यार आंसर तो मिल ही नहीं रहा है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दिया है, √2 + 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो नीचे 1 हो जाएगा. तो ये चीज भी ध्यान रखना है, गलती हो सकती है आपको इसमें. इन ट्राइंगल ABC, DE is parallel to AC. ABC, DE is parallel to BC. Okay. If AB is, this is 10. Okay, AC के पैरेलल है. ओके, आपको गिवन है AB 10, AD 4, तो ये 6 होगा. तो B और C का रेशियो 6:4 ही तो होगा, 3:2. डी ऑप्शन.